Earlier, he was the Vice Chancellor of Sagar University and known as Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Madhya Pradesh. He has been postgraduate from there and then PhD from Guwahati University. After that, he worked more than 32 years in Mizoram University and he occupied key positions in administration as well as in academics. His expertise is such that if someone is from primary education or higher education, both will listen his lecture simultaneously, all will understand equally well and realize the significance. Professor Tiwari has heading or has been heading and headed many key positions in government of India, including UGC, NEC, and other administrative institutions and academic institutions. Professor Tiwari has been awarded many awards for his contribution in the field of education. I do not want to take much time between you and the Professor Tiwari so that we will have ample time to listen him. And we are fortunate that we have been once listened him in the Punjab University, Chandigarh, during the meet of civil society. The time when he spoke, we were mesmerized. So I hope today he will enlighten us with his insight, thoughtful views. I request him to kindly deliberate on the topic. As we all are aware that the theme of today's celebration of National Education Day is changing course, changing education. So I hope our Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Tiwari ji, will deliberate in the topic so that we will visualize the theme during this year 2022. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time for us to interact online. But at the same time, we request you please find some time to visit our institute and give your blessing in face-to-face mode in the institute itself. I hope you will definitely accept our invitation today itself. Thank you very much, sir. Jai Hind. Uh, Professor S.V. Sharma, Dean of the school, all esteemed teachers and my dear students, and all those who have joined this online meet to celebrate National Education Day and also to see the trajectory which the current learning system of India is moving with, and what are the roadmaps for us to make our education competitive globally and also to skill our youth so that they become relevant in the 21st century. You know, education is a very vast topic, and also the reforms that are envisioned in National Education Policy 2020, these are also vast. So I do not know how much time I have to discuss all these issues, uh, though it is not possible to cover all reforms and that are stipulated in NEP 2020 and also which are not included in NEP 2020. But I will try to summarize within the time that is available to me, and also I will throw some lights on
uh, out of box ideas that we need to implement in our learning system to make it dynamic and to make it all inclusive and also to meet the current requirements. Uh, we have the distinguished academicians, and most of you have devoted your time, whatever time you have spent in higher education, uh, and the basic contours that govern the education as a whole and higher education in particular. We know that when 21st century was about to start, UNESCO constituted a team to work out the roadmap that that would be relevant for 21st century learners. And in the preface of that document, the very purpose of education is defined, which is actually basically the recapitulation of the philosophies of education that was expressed by our great philosophers like Swami Vivekananda, Aurobindo Ghosh, and many others, Gurudev Rabindranath Tagore, and many others. It is basically recapitulation. And there the four pillars of education are defined as per that document, and all of us will agree that the very purpose of education can be defined through four pillars, the four pillars of education. One is, I'm told that there are some school education also, school students also, therefore I'll switch over to Hindi and I will be using a mixed language. ये जो चार स्तंभ हैं शिक्षा के, उसमें से पहला है लर्निंग टू नो. हम सीखते हैं कुछ चीज जानने के लिए, समझने के लिए, लर्निंग टू नो. देन सेकंड पिलर लर्निंग टू डू, जो हमने सीखा है उसको कर पाए, ये दूसरा उद्देश्य होता है. तीसरा पिलर है एजुकेशन का कि लर्निंग टू बी, हमने जो सीखा है उसके अनुसार अपना जीवन मूल्य बनाना और उसके अनुसार अपने जीवन का संचालन करना. लर्निंग टू बी, शिक्षा ग्रहण करने से, कोई भी डिग्री ग्रहण करने से जो हमें शिक्षा मिली है उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करना, ये तीसरा पिलर हो गया. और चौथा पिलर है लर्निंग टू लिव टुगेदर. लर्निंग टू लिव टुगेदर, this is the essence of education. And why I say that these four pillars are the stipulation or the recapitulation of the philosophy of our ancient system of education is because हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम लर्निंग टू लिव टुगेदर ही है. तो ये बहुत पहले बता दिया था, हजारों वर्ष पूर्व. और इसी चीज को पुनः विदेशी विद्वानों ने, पाश्चात्य देश के विद्वानों ने उसी चीज को पुनः शिक्षा के उद्देश्य में पुनः उसको निरूपित किया. अब यदि ये शिक्षा का उद्देश्य है तो फिर शिक्षा के लिए, इस तरह की शिक्षा देने के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए. इसमें हम कुछ स्लाइड शेयर करेंगे. आपको दिख रही है? हेलो जी सर, स्लाइड दिख रही है सर. हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें 2047 तक पुनः विश्व गुरु बनना है, जो हम थे पहले, आज से सदियों वर्ष पूर्व हम जो थे. और उसी को हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की रिस्ट्रक्चरिंग करेगी और ये भारत केंद्रित होगी. इसका जो शिक्षा का, हमारी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र भारत में होगा. यूरोसेंट्रिक हमारी एजुकेशन व्यवस्था नहीं होगी और हम क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे, अपने युवाओं को स्किल बेस्ड एजुकेशन देंगे, जिससे कि हमारी जो नॉलेज इकोनॉमी में वो अपनी सहभागिता
को सिद्ध कर सके। अब इस तरह की एजुकेशन पाने के लिए हमें क्या, किस तरह का रोड मैप अपनाना पड़ेगा, किस तरह की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्या परिवर्तन हमें अपने करिकुलम में लाने पड़ेंगे, क्या परिवर्तन हमें अपने जो पेडागॉजी है, पढ़ाने की पद्धति है, उसमें किस तरह के परिवर्तन लाने पड़ेंगे, और कंटेंट, किस तरह का कंटेंट हमें अपने युवाओं को परोसना पड़ेगा, ये इस सब में सोचने की आवश्यकता है। हम सबको मालूम है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अभी 4.0 का समय है। ये कालखंड जो है ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का है। और यदि हम इस पर नजर डालें, इंडस्ट्री किसी भी देश की इकोनॉमी को जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत बड़ा सेक्टर होता है। इस क्षेत्र की इंडस्ट्रियल एरिया की, क्षेत्र की, सेक्टर की जो आवश्यकताएं हैं, जिस तरह के स्किल्ड मैन पावर उनको चाहिए, उस तरह का स्किल्ड मैन पावर हमें तैयार करने के लिए हम शैक्षणिक संस्थाओं का दायित्व है कि हम उस तरह के स्किल्ड मैन पावर तैयार करें, जिससे कि वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सहभागी बन सके और हमारे देश की जीडीपी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हम इसको $5 ट्रिलियन की जीडीपी अपने करें, जिससे कि हमारे देश में चारों तरफ खुशहाली हो सके और सभी वर्ग के लोग, सभी क्षेत्र के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए ये आवश्यक है। इसमें देखिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहला जो था 1.0, उसमें जो हमें एनर्जी चाहिए मशीनों को चलाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो पानी और भाप से आता था। वाटर एंड स्टीम वेर यूज्ड फॉर टू मैकेनाइज प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1। जब इसका विकास हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2 में हम इलेक्ट्रिसिटी आई, और उसके इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने ये जो मास प्रोडक्शन है, काफी संख्या में प्रोडक्शन करने का जो आवश्यकता, वही पॉपुलेशन बढ़ने के साथ चीजों की आवश्यकता हुई, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया। तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से जो हम ऑटोमेशन हुआ, उससे प्रोडक्शन उस पर आधारित था। लेकिन आज जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 के उसमें हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, ये मानवता के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जिनको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, डिसरप्शन ये करती हैं, जो धीमी गति है प्रोडक्शन की, धीमी गति है सभी चीजों की, प्रक्रियाओं की, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स की जो धीमी गतियां हैं, उनको कैसे उनको डिसरप्ट करके उसको कैसे एक्सीलरेट करें। इसलिए इनको डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं। इनमें से आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटेलिजेंट रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। और इनकी वजह से क्या हो रहा है अभी, जो एक मानवता के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चिंतन और चिंता दोनों का विषय है। केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा, उस समस्या को दूर करने के लिए चिंतन करके जो उपाय करेंगे, वो चिंतन करना आवश्यक है। और यही चिंतन की आवश्यकता है हमें अपने एजुकेशनल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने का। तो इसमें जो समस्या है वो है कि फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल स्फीयर, 3 चीजें हमारे से प्लेनेट में ब्रॉडली आज हम जो देख सकते हैं, जिनका इंटरेक्शन हो रहा है, जो आपस में इंटरेक्ट करके प्रोडक्शन दे रही हैं। उनमें एक फिजिकल एंटिटीज है, दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो ये 10 चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, और बायोलॉजिकल स्फीयर है, उसमें आदमी है और उसमें विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं। ये बायोलॉजिकल स्फीयर हो गया। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, तो जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ये इनमें इनकी जो बीच की जो लाइंस है, पहले रिजिड बाउंड्री जो हुआ करती थी, वो अभी धीरे धीरे समाप्त हो रही है।
एजुकेशन, इसी तरह से 4 एजुकेशन में भी 4 रिवोल्यूशन हुए हैं। अभी हम एजुकेशन 4.0 पर हैं। 1, 2, 3 की बात नहीं करेंगे, बहुत समय बीत जाएगा, लग जाएगा। हम केवल 4 आज की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो एजुकेशन 4.0 वर्जन, एजुकेशन का जो 4.0 वर्जन है, ये किस तरह का होना चाहिए। पाश्चात्य देशों में आज किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, सभी हमें नकल नहीं करना, कुछ वहां से सीखने की आवश्यकता है। तो आज सबसे बड़ी हमारे शिक्षा जगत में, भारतीय शिक्षा जगत में जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि एमलेस एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य की गुणवत्ता क्या है, वो कार्य सफल हुआ कि नहीं, वो उसके आउटकम पर निर्भर करता है। हमें उस कार्य को करने से जो प्राप्त होता है उससे ये सिद्ध होता है कि हमने जो कार्य किया है वो गुणवत्तापूर्ण कार्य था कि नहीं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन का अभी जमाना है। हम कोई भी एक पाठ पढ़ाते हैं तो उस लेसन को पढ़ाने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों के ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, उससे विद्यार्थी में कोई स्किल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, उसमें उसके से कोई एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड हमारे विद्यार्थी में विकसित हुआ है कि नहीं, ये जानने की आवश्यकता है। तो इसमें जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें स्कूल एजुकेशन में काफी काम हुआ, अभी हाई एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है कि जो प्रोग्राम है, जैसे हम हाई एजुकेशन की बात करें तो जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को परस्यू करने के बाद विद्यार्थियों में को क्या मिलेगा, क्या सीखेंगे, वो ये बताना जरूरी है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। इसको विदेशों में ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, वेस्टर्न लर्निंग सिस्टम में इसको ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स इसको बोलते हैं। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद एक प्रोग्राम है, जैसे ग्रेजुएशन में आप देख लें कि बीए विथ मैथ्स बैकग्राउंड, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैट्स भी आता है, ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इनमें इस प्रोग्राम में, अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में फॉर एग्जाम्पल कितने कोर्स हैं, हर एक कोर्स का भी लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करना पड़ता है। तो इसको हम कोर्स लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये डिफाइन करना बहुत आवश्यक है। ये पहला स्टेप हो गया, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमने जो टारगेट किया है कि इस प्रोग्राम को परस्यू करने के बाद बच्चों में ये स्किल्स होगी, तो इसके बाद जो कोर्स कंटेंट है उसकी मैपिंग हमें करनी है। जो हम हर एक जो कोर्स हैं, उन कोर्सेज में जो लर्निंग टॉपिक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, टीचिंग मॉड्यूल्स को अब हम टीचिंग मॉड्यूल्स नहीं बोलते हैं, उनको लर्निंग मॉड्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि टीचिंग उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को सिखाना, इसलिए लर्निंग मॉड्यूल्स। तो ये इसमें क्या जो हम लर्निंग मॉड्यूल्स डिफाइन कर रहे हैं एक कोर्स के अंदर 5 यूनिट में, वो हमारे आउटकम से मैप कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह की मैपिंग करना पड़ा है। और जो हमने जो लर्निंग आउटकम्स डिफाइन किया है, हमारे टीचिंग मॉड्यूल्स उससे करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, जिससे कि वो लर्निंग आउटकम्स हमारे विद्यार्थियों को मिल पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए वो ये है को लर्निंग, को क्रिएशन एंड को इनोवेशन का। ये हमारे गुरुकुलों में होता था। वहां पर गुरु जो है वो विद्यार्थियों के साथ सीखते थे, वो पढ़ाते नहीं थे। गुरुकुलों में यदि हम गुरुकुल के समय की जो पद्धति, पढ़ाने की जो पद्धति होती थी, उसको यदि हम देखें तो उसमें हमें यह पता चलेगा कि केवल गुरु जो है वो एज ए को लर्नर क्लासरूम में बैठता था, रूम नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते थे। गुरु चबूतरे में बैठ जाता था, विद्यार्थी नीचे बैठते थे। तो वो जो पढ़ने की, सीखने की व्यवस्था थी उसमें टीचर नहीं हुआ करता था, केवल लेक्चर नहीं देता था।
वो ये इंश्योर करता था कि कोई भी लर्निंग मॉड्यूल है वो जब तक उस कक्षा के सभी विद्यार्थी, उस ग्रुप में जितने स्टूडेंट हैं, जितने विद्यार्थी हैं, जितने शिष्य हैं, गुरु शिष्य परंपरा में जितने शिष्य हैं, वो जब तक उस लर्निंग मॉड्यूल में सभी को महारत नहीं हासिल हो जाता था, तब तक वो दूसरा लर्निंग मॉड्यूल नहीं लेते थे। ये शिक्षा की गुणवत्ता थी। हर एक विद्यार्थी को, अभी हम एजुकेशन पार्लेंस में बोलते हैं देयर आर फास्ट लर्नर्स, देयर आर स्लो लर्नर्स। फास्ट लर्नर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं और स्लो लर्नर्स है उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये सब व्यवस्था फास्ट लर्नर्स का केयर करने के लिए गुरुकुलों में व्यवस्था थी, स्लो लर्नर्स के लिए भी गुरुकुलों में व्यवस्था थी। और वो ज्ञान का सृजन, साथ साथ ज्ञान का सृजन भी करते थे और इनोवेट करते थे, नई चीजों, नई टेक्निक, नई स्किल सेट को, स्किल को यूज करते हुए नई चीजों को बनाना, को इनोवेट, इस तरह की व्यवस्था हमारे गुरुकुलों में थी। इस व्यवस्था को हमें पुनर्स्थापित करना अति आवश्यक है। फिर देखिए कि आज का जो जमाना है, जिस तरह के हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस तरह की कठिनाइयां हमें अपने जीवन यापन करने में आ रही हैं, पहले हम लोगों का जीवन, आज से यदि हम 100 वर्ष पूर्व की व्यवस्था देखें तो हम लोगों का जीवन स्टेशनरी हुआ करता था। गांव के लोग गांव में ही रहते थे, उनकी मोबिलिटी बहुत कम थी। आज तरह तरह की चीजें हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। तो आज की जो लर्नर की आवश्यकता है वो है एनी टाइम, एनीवेयर, एनी टाइप एंड एनी अमाउंट ऑफ लर्निंग। और इन चारों चीजों में विद्यार्थी, एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम एक क्लासरूम में जितने भी विद्यार्थी हैं, हम ये मान लेते हैं कि सभी की लर्निंग नीड्स, सीखने की आवश्यकताएं एक समान है। वो कब सीखेगा, कब, उसकी प्राथमिकता नहीं है कि विद्यार्थी कब सीखना चाहता। बायोलॉजी वाले जो हमारे शिक्षक हैं, वो एक वर्ड बायोलॉजी में पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम। उसमें यह है कि विद्यार्थी 24 आवर्स में से कुछ ऐसे समय होते हैं जहां पर विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और कोई विद्यार्थी यदि किसी समय फ्री नहीं है, हमने 10 से 12 उसको बता दिया कि क्लास लेना है, यदि उस समय वो फ्री नहीं है तो गया वो, फिर उसको उस लर्निंग मॉड्यूल्स के बारे में दोबारा बताने के लिए शिक्षक के पास समय नहीं है। तो हमें अपनी टीचिंग को एनी टाइम बनाना है, एनीवेयर। विद्यार्थी कहीं भी हो, क्लासरूम में बैठना आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी क्लासरूम में ही हमेशा बैठा रहे। यदि उसके पास समय नहीं है, उसकी अन्य आवश्यकताएं हैं, कहीं बाहर दूसरी जगह जाने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए, तो उसको कहीं से भी सीखने की सुविधा होनी चाहिए। फिर एनी टाइप, यहां हम टाइप का मतलब है यहां पेडागॉजी से है। देखिए, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ योग्यता होती है, कुछ न कुछ इंटेलिजेंस होता है। और इसी को कॉपी करते हुए गार्डनर ने बाद में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बनाया। तो हर एक विद्यार्थी कुछ न कुछ क्षमता से युक्त होता है। शिक्षक का काम है उस क्षमता को पहचानना और उसके अनुरूप उसकी उस क्षमता में और निखार लाना, उसमें उसको और परिपक्व बनाना। तो ऐसी पद्धति पेडागॉजी हमें यूज करके जो हर एक विद्यार्थी के लिए सुटेबल हो। अभी हम क्या मानते हैं कि सभी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं वो सब एक ही पद्धति से सीखेंगे, हम ये व्यवस्था हमारी क्लासरूम में अभी, जबकि जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल, इससे तो काम होगा नहीं। सभी विद्यार्थियों की अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं, कोई किसी में निपुण है, कोई किसी दूसरे क्षमता में निपुण है, कोई तीसरे क्षमता में निपुण है, कोई सुन के बहुत अच्छे तरीके से उसके समझ में आएगा, कोई किसी को देख के बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, किसी को डिस्कशन करके बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, किसी को लेक्चर दे के बहुत अच्छी समझ में आता है। तो ये इस तरह की जो विभिन्न तरह की पेडागॉजीज हैं, उनको स्टूडेंट्स की क्षमता के अनुसार क्लासरूम में
योग्यता के अनुसार क्लासरूम में विद्यार्थियों को कई ग्रुप बनाना और उसके हिसाब से उस ग्रुप के उस ग्रुप के उसकी लाइकिंग के हिसाब से फिर उस पद्धति को अप्लाई करना उसको सिखाने के लिए। और एनी अमाउंट ऑफ लर्निंग, ये फास्ट लर्नर स्लो लर्नर का कंसेप्ट है। हम बहुत तेजी से पढ़ाते जाएंगे तो सभी विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हमें ऐसा कि फास्ट लर्नर्स का एक ग्रुप, स्लो लर्नर्स का एक ग्रुप, स्लो लर्नर्स को एक गति से सिखाएं, फास्ट लर्नर्स को दूसरी गति से सिखाएं और फिर दोनों की इंटरफेसिंग करें। आइसोलेटेड ग्रुप नहीं डेवलप करना है, लेकिन जब हम बेसिक चीज उनको बताएंगे तो उनमें स्पीड की आवश्यकता, स्पीड भी होगा, उसमें अमाउंट ऑफ लर्निंग, कितना क्वांटम ऑफ लर्निंग हम कितना उनको दे रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब के लिए ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि हम ऐसा कैसे कर पाएंगे। आज जब इतनी तरह की पहले गुरुकुल में गुरु और शिष्य हमेशा साथ रहते थे, जब तक कि उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, उनकी विद्या पूर्ण नहीं हो जाती थी, तब तक वो साथ में रहते थे। आज तो ये व्यवस्था है नहीं। आज तो तरह तरह की छुट्टियां हैं हमारे पास। कैजुअल लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव है, ड्यूटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, मैटरनिटी लीव है, समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, फिर बहुत सारी जगह आजकल 5 दिन ही काम करने के हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो इससे हमें इतना सब करने के समय कहाँ से आएगा, लेकिन करना आवश्यक है। तो इसलिए इसमें फ्लिप्ड क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। फ्लिप्ड क्लास का मतलब, फ्लिप मतलब करना, उलट पुलट करना। अभी हम सबको मालूम है कि हम क्लासरूम में विद्यार्थी, शिक्षक आते हैं क्लासरूम में 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा लेक्चर देकर के चले जाते हैं। शिक्षक ये चिंता नहीं करता है कि विद्यार्थी के समझ में आया है कि नहीं। डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन रेजिंग के लिए, क्वेरीज के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई समय नहीं बचता है, क्योंकि किसी तरह ले दे करके हम 180 टीचिंग डेज कैलेंडर में दिखाते हैं, एक्चुअली उतना भी शायद नहीं होता है। समस्या ये है। तो इसको, समय की इतनी कमी है, तो इस कम जो भी समय हमें उपलब्ध है उसका हम क्वालिटी यूटिलाइजेशन कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा अपने विद्यार्थियों को कैसे दे पाएं, और क्लासरूम इन्वायरमेंट को कैसे हम एक्टिव, सक्रिय वातावरण वहां बनाएं। अभी हमारे विद्यार्थी पैसिव लर्नर्स हैं, विद्यार्थी सुनते हैं, दे आर ओनली द रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, दे रिसीव इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज इवन, दे रिसीव इंफॉर्मेशन। देखिए हमारे एक श्रुति में बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, जो 3000 पहले श्रुति लिखी गई है। उसमें एक बात लिखी गई है कि उस समय 3000 पहले हमारे गुरुओं ने ये सोच लिया था कि जो शिक्षा है वो 4 चरणों में पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है 4 चरणों में। पहला चरण है कि जो विद्यार्थी जो गुरु से सुनता है क्लासरूम में, वो पहला क्वार्टर है, 1/4 शिक्षा। यदि हम शिक्षा को 4/4 भागों में, 4 भागों में बांटें, 100 मान लीजिए 100 है, तो इसमें से 25% ही शिक्षक बोलता है क्लास में, विद्यार्थी सुनता है, इससे केवल वो 25% ही सीख पाता है। अभी केवल इतना ही हो रहा है, 25% हम सिखाते हैं विद्यार्थियों को, श्रुति में लिखा है। दूसरा चरण है जो सीखने का, दूसरा 25%, जो विद्यार्थी ने जो सुना है शिक्षक से उसके बारे में मनन करना। आदि शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि शिक्षा 3 चरणों में पूर्ण होती है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रुति में बोलते हैं 4 चरण। तो ये मनन करने से विद्यार्थी जो अपने आप मनन, सोचने से, चिंतन करने से जो सीखता है, वो उससे दूसरा 25% विद्यार्थी सीख पाता है, तो 50% हुआ। तीसरा जो 25% है वो विद्यार्थी ग्रुप डिस्कशन से, आपस में सहपाठियों से उस विषय के बारे में बातचीत करके जो उसको क्लैरिटी, स्पष्टता आती है विषय वस्तु के बारे में, वो तीसरा चरण होता है
और ये 75% हो जाता है, जिसको आजकल हम जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशंस। ये और अंतिम जो चौथा चरण है वो, उसमें ये होता है कि जो 3 चरणों में वो जो ज्ञान अर्जन हुआ है, उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है, ये सिद्ध करने का चरण है चौथा चरण। देखिए कि किस स्तर की पढ़ाई होती थी। जो ज्ञान लिया गया है वो समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं, वो मानव जाति के लिए उपयोगी है कि नहीं, वो देश के लिए, राष्ट्र हित में है कि नहीं, इसको सिद्ध करना ये चौथा चरण था। तो 3000 पहले हमारे यहाँ इस विधि से पढ़ाई होती थी, पेडागॉजी ये थी हमारी। चारों चरणों में शिक्षक बोलने के बाद मेंटरिंग का काम करते थे, वो सहपाठी हुआ करते थे। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ पढ़ाने की थी। क्लासरूम तो अभी का शब्द है। तो जहां भी बैठ के बच्चे, शिष्य लोग सीखते थे गुरु से, वहां पर इस तरह के एक्टिव लर्निंग सेंटर्स वो हुआ करते थे। एक्टिव लर्निंग सेंटर्स, पैसिव नहीं, आज जैसे क्लास में विद्यार्थी सुन रहा बैठा चुपचाप। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए अभी हमें फ्लिप क्लास करना पड़ेगा। और ये फ्लिप क्लास, आप सब बहुत लोग एजुकेशन से संबंधित हैं, फ्लिप पेडागॉजी में अभी जो हो रहा है उसका उल्टा, इसलिए फ्लिप्ड हो गया ये। अभी हम विद्यार्थी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्लासरूम में, और विद्यार्थी उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है घर में। इसको यदि हम उल्टा कर दें कि घर में वो इंफॉर्मेशन ले जो क्लासरूम में हो रहा है, और क्लासरूम में सोचे उसके बारे में, इसको फ्लिप लर्निंग कहते हैं। तो इसके लिए हमें आजकल बहुत सारे ई कंटेंट्स उपलब्ध हैं। तो इन ई कंटेंट्स को, हर एक विषय में ई कंटेंट उपलब्ध है। स्कूल एजुकेशन में, हाई एजुकेशन में तो हर एक विषय में इतना ज्यादा काम ई कंटेंट जनरेशन का हाई एजुकेशन में हुआ है जिसका कोई हद नहीं। हम सबको मालूम है कि स्वयं प्रभा जो चैनल है, 32 चैनल्स जो राउंड द क्लॉक 24x7 विभिन्न विषयों के विभिन्न शीर्षकों पर लगातार लेक्चर होते रहते हैं। ये बहुत ही सस्ती व्यवस्था है। इसको हम एक टीवी स्क्रीन बड़ा लेकर के और एंटीना लगाना है, और इससे ये स्वयं प्रभा के जितने भी चैनल हैं ये हमारे विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जाएंगे। वो सुनेंगे, क्लासरूम में उस पर डिस्कशन होगा, क्लासरूम में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो ये इस तरह का कंसेप्ट फ्लिप लर्निंग आज के ज़माने में करना बहुत जरूरी है। तभी हम एक एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम अपने क्लासरूम्स में क्रिएट, लर्निंग सेंटर्स में क्रिएट कर पाएंगे। ये इसलिए आजकल क्या हो रहा है कि सीखने का कार्य घर में और आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस में केवल कौशल विकास का कार्य। अब एजुकेशन में एक और ये बहुत बड़ी ये है कि आजकल इतने सारे इनोवेशंस हुए हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग, ये और नोल्स का जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का कंसेप्ट। एनईपी में जो सबसे बड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, लिखी गई है, वो ये है कि हमें कुछ टॉपिक्स को ही विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा देना है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोर्स के अंदर, हर एक कोर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स लिखते हैं, उनको यूनिट्स में बांट देते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोचिए आप लोग विभिन्न विषयों से हैं, मैं भी एक विषय का हूँ। हम किसी भी विषय के बारे में यूजी पीजी टुगेदर, ठीक है भैया चले जाओ, यूजी पीजी टुगेदर दोनों मिला करके किसी भी विषय में जितना ज्ञान उपलब्ध है आज, उसका 20 से 25% ही हम पढ़ा पाते हैं। मतलब कि हम किसी विषय के बारे में केवल 25% ज्ञान ही विद्यार्थियों को देते हैं। तो बाकी 75% वो कैसे सीखेगा? उसके लिए व्यवस्था करना, चिंता करना हम शिक्षकों का ही काम है। तो ये कैसे हो पाएगा?
तो ये ऐसे हो पाएगा कि हम क्या पढ़ाना है इस पर एम्फेसिस न दें, जोर देने के बजाय पढ़ाने की पद्धति उनको हम ट्रेन करें कि वो स्वयं सीखने में माहिर हो जाए, स्वयं सीखे, सेल्फ लर्नर्स। सीखने की प्रविधि में, सीखने की प्रक्रिया में उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षित करना। यदि हम ये कर पाते हैं तभी हमारे विद्यार्थी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन पाएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ये बनाना, हमारे अपने युवाओं को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाना है, बहुत जरूरी है। गुरुकुलों में यही सिखाया जाता था, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे कर पाए हमारे शिष्य, गुरुओं की चिंता ये होती थी। और इसको करने के लिए देखिए क्यों अति आवश्यक है, ये इसलिए अति आवश्यक है कि आज आप देखें कि आज जिस तरह की स्किल्स की आवश्यकता है हम शिक्षकों को, वो स्किल्स हम जब पढ़ रहे थे हमें नहीं दी जाती थी। आज जो हम अपने विद्यार्थियों को स्किल दे रहे हैं, स्किल सेट्स डेवलप कर रहे हैं, वो 5 से 10 साल के बाद में इररिलेवेंट हो जाएंगी, वो प्रासंगिक नहीं रहेंगी। उनको अप स्किलिंग करनी पड़ेगी और उनको री स्किलिंग करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थी, आज जब हम ट्रेनिंग दें विद्यार्थियों को, तो उनको ऐसा भी प्रशिक्षण दें जिससे आज जो वो स्किल हम उनको दे रहे हैं उनकी अप स्किलिंग कैसे कर पाए वो, और उनकी री स्किलिंग। अगर एक फ्रेज है 3 शब्दों का, आप सबको मालूम होगा, लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग। सीखना, जो सीखे हैं आज वो यदि कल इररिलेवेंट हो जाए, अप्रासंगिक हो जाए, तो उसको कैसे अनलर्न करना, उसको कैसे भूलना और नए तरीके से जो उस समय रिलेवेंट है वो कैसे सीखना। लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, इस मॉडल पर हम शिक्षकों को काम करना पड़ेगा। हम सबको मालूम है, पहले हम लर्निंग प्लान्स की बात करते थे, लेसन प्लान्स की। आजकल कोई लेसन प्लान नहीं, लेसन है ही नहीं है, लर्निंग है, लर्निंग प्लान्स। अब लर्निंग प्लान्स भी रिलेवेंट हो गया, अब क्रिएटिविटी प्लान्स। ये परिवर्तन है, हमें इसके साथ मूव करना है। ये जो ट्रेजेक्ट्री है सिखाने की, इसके हिसाब से आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे हम उन पर कैसे पहुंच पाए, उनकी प्राप्ति कैसे कर सके, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की जो समस्या है, एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट होना चाहिए हमारे साथ। और जो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखें कि हाई एजुकेशन में ब्लेंडेड लर्निंग कंसेप्ट बहुत तेजी से अपना पैर फैला रहा है, जहां पर हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की, और ये व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है, और इसको हमें दोनों तरीके से हमें पढ़ाना है। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, आप सबको मालूम है, ये अलाउ कर दिया है कि 40% तक ऑनलाइन किसी भी कोर्स का, यदि मान लीजिए कोई कोर्स 100 क्रेडिट का है तो उसका 40 क्रेडिट हम ऑनलाइन तक 40 क्रेडिट पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन उसकी परीक्षा ले सकते हैं। 60 क्रेडिट अभी भी हमें ऑफलाइन करना है। तो ये इस तरह की जो, और विद्यार्थियों को फुल फ्रीडम टू चूज कोर्सेज, नॉलेज एंड स्किल्स दैट दे नीड। देखिए हम विद्यार्थियों पर बहुत बड़ा, आज के ज़माने में हमारे जो युवा हैं उनके साथ हम न्याय नहीं कर रहे। मैं इसलिए बोलता हूं कि आज यदि मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूं, बाजार में जाता हूं कुर्ता का कपड़ा, पैजामे का कपड़ा लेने के लिए, तो दुकानदार से 50 उसका माथा चाट जाता हूं। ये किस फैब्रिक का कपड़ा है, कहाँ बना है, कैसे बना है, फिर इसको कैसे धोना है, किस डिटर्जेंट से धोना है, फिर इसको कैसे प्रेस करना है, ज़्यादा गर्म प्रेस होना चाहिए कि माइल्ड होना चाहिए कि बहुत लो गर्म हीट होनी चाहिए, उसमें किस तरह से, इतने सारे प्रश्न मुझसे पूछते हैं। और फिर उसके बाद कास्ट निगोशिएशन करते हैं, ये इतने का नहीं है, इसमें इतना कम कर दो, हम तो इतने दे पाएंगे। ये 50 तरह की चीजें हम करते हैं।
क्या ये फ्रीडम हम आज अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं? जब हमारे किसी भी संस्था में विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है, इस तरह का फ्रीडम क्या हम अपने विद्यार्थियों को दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं दे पाते। हम जो पढ़ाना चाहेंगे वही पढ़ाएंगे, हम जिस विधि से पढ़ाना चाहेंगे उसी विधि से पढ़ाएंगे, हम जिस विधि से इवेल्युएशन करना चाहेंगे उसी विधि से इवेल्युएशन करेंगे। विद्यार्थियों का इसमें कोई वो नहीं है, उनकी कोई क्वेरी, उनकी कोई इच्छा को हम संज्ञान में नहीं लाते हैं। अपना कोर्स बनाने में, पेडागॉजी अडॉप्ट करने में, इवेल्युएशन मेथड अडॉप्ट करने में, ये बहुत ही। और कोर्स कंटेंट, किस तरह का कंटेंट, कंटेंट बहुत ही जरूरी है। देखिए, सिखाने के लिए हम किस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं। हमारा संस्कृति में ये बोलते हैं कि हम जिस तरह का खाना खाएंगे उस तरह की हमारी मनोदशा विकसित होगी, हम जिस तरह के कपड़े पहनेंगे उस तरह की मनोदशा हमारी डेवलप होगी, हम जिस विलासिता से अपना जीवन व्यतीत करेंगे उस तरह की मनोवृत्ति हमारे मन में पैदा होगी। ये हमारी सभ्यता कहती है। तो यदि हम इसको इंपोर्ट करें एजुकेशन में, तो जिस तरह का कंटेंट हम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उसी तरह की उनकी मनोदशा डेवलप होगी। और फिर हम शोध मचाएंगे कि हमारे युवाओं में मोरल्स नहीं है, एथिक्स नहीं है, और फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का कोर्स लाएंगे। आज से 100 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों का वैल्यू सिस्टम हमसे कहीं ज्यादा अधिक था। वो कोई वैल्यू एजुकेशन का कोर्स नहीं पढ़े थे, लेकिन था उनके जीवन लाइफ स्टाइल में ही, पूरी लाइफ स्टाइल ही उनकी, पूरा जो जितना जीवन यापन करते थे वो सब ही वैल्यू बेस्ड था। उनकी हर एक एक्टिविटी वैल्यू बेस्ड थी, इसलिए अलग से उनको वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता नहीं थी। आज हमें, क्योंकि हमारे वैल्यूज में इरोजन हुआ है, इसलिए आज हमें वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, वैल्यू एजुकेशन कोर्स कराना पड़ता है। तो कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूं कि कंटेंट का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और उस कंटेंट को कैसे उसको एक्सप्लेन करना है विद्यार्थियों में, ये बहुत आवश्यक है। स्कूल एजुकेशन का मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि हम जो हमारी ये कैथलिक मिशनरी स्कूल्स हैं, उनमें पोएम्स, इतनी तरह तरह की पोएम्स और ऐसी पोएम्स पढ़ाई जाती हैं जो कि हमारे जो शिशु हैं, हमारे जो बच्चे हैं 3-4 साल के, उनकी मनोदशा को पूरी तरह से विकृत कर देती है। उसका इम्पैक्ट होता है पोएम का। पोएम यदि हम पढ़ाते हैं तो क्या, व्हाट इज टेक होम मैसेज फ्रॉम दैट पोएम, उससे क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, क्या एथिक्स क्रिएट हो रही है उस पोएम से, इस पर हमें ध्यान देना। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि हम पढ़ाते हैं KG1 KG2 में, बच्चों को रटाते हैं कि रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। इसको पढ़ने से शिशु के मस्तिष्क में किस तरह की मनोभावना का विकास होगा। पानी बरस बंद हो जाओ क्योंकि मुझे खेलना है, ये स्वार्थ की भावना डेवलप हुई। इसलिए कि पानी कितना आवश्यक है, पानी बरसना पेड़ पौधों के लिए, कृषि के लिए, नदियों के लिए, भूमिगत जल के लिए, बरसात होना कितना, जीव जंतुओं के लिए बरसात होना कितना आवश्यक है। लेकिन हम बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम प्रेयर करो कि बरसात बंद हो जाओ क्योंकि मुझे खेलना है। तो इस तरह के पॉइंट से हम क्या वैल्यू सिस्टम क्रिएट करेंगे अपने युवाओं में, अपने शिशुओं में, आगे चल करके वो क्या सोचेंगे। यही उनके पूरे जीवन में, यही जो लालच है वो उनके चरित्र का भाग बन जाती है। और इसके तो फिर क्या, इसका अल्टरनेट क्या है? हमारी सबसे बढ़िया जो वो है पोएम है, इससे बढ़िया कोई पोएम हो ही नहीं सकती है शिशुओं को पढ़ाने के लिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसमें तीन तरह के मैसेज है। क्या मैसेज है इसमें यह है कि हम बच्चे को बता रहे हैं कि मछली केवल पानी में ही जिंदा रहती है, और इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को ये बता रहे हैं बच्चा पानी में जिंदा नहीं रह सकता, वो थल में रहेगा जिंदा। और थल में जिंदा कुछ लोग, तो इसका मतलब कुछ लोग थल में जिंदा रह सकते हैं, कुछ लोग जल में जिंदा रह सकते हैं। हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं और उसके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं
कि वो कुछ जीव पानी में क्यों जिंदा रह सकते हैं और कुछ जीव थल में क्यों जिंदा रह सकते हैं, हम उसमें ये क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं इसके द्वारा। और फिर इससे हम ये भी अपने बच्चे को बता रहे हैं कि उसको बाहर उंगली मत दिखाना, क्योंकि वो डर जाएगी। और हमारी सभ्यता में किसी को डराने के लिए का कोई स्थान नहीं, इसको हम अमानवीय व्यवहार मानते हैं यदि हम किसी को डराते हैं तो। और बाहर नहीं निकालना क्योंकि मर जाएगी, और हमारी सभ्यता में किसी को मारना पाप माना जाता है। तो एक पॉइंट से हम कितनी सारी चीजें सिखा रहे हैं अपने शिशुओं को, लेकिन वो हम नहीं सिखाएंगे, हम तो रेन रेन गो अवे उनको सिखाएंगे। तो कंटेंट का महत्व इससे आप समझिए। दूसरा, आपने शेर और लोमड़ी की कहानी आपने सुनी होगी। हम इस कहानी को बच्चों को जब सुनाते हैं तो इसमें लोमड़ी की वाहवाही करते हैं कि कितना बुद्धिमान थी, इस शेर को मार डाली। ये हम मैसेज देते हैं, लेकिन ये इसका मैसेज ये नहीं है। इस स्टोरी का जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि फिजिक्स के दो बहुत बड़े सिद्धांत जो शिशुओं में डालने की आवश्यकता है, वो सिद्धांत हम शिशुओं को बता रहे हैं इस कहानी के द्वारा। एक तो हम इको बता रहे हैं, गूंज, जब शेर दहाड़ता है तो डबल आवाज से उसकी दहाड़ वापस इको होती है, तो ये हम बता रहे हैं। और उसमें प्रतिबिंब पानी में कैसे बनता है, शेर जब देखता है तो उसको लगता है कि अंदर एक और शेर है, वो कूदता है, मर जाता है, तो इमेज, मिरर इमेज बनता है। ये हम इस कहानी के द्वारा, ये टेक होम मैसेज हम इस कहानी के द्वारा विद्यार्थियों को देते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं, आप में से शायद कुछ लोग, आप लोग सुने भी होंगे, कंटेंट की बात कर रहे हैं, कैसे कंटेंट को री इंटरप्रेट करना है। आप हमारे जो कंटेंट है स्वयं के देसी कंटेंट, उनको कैसे री इंटरप्रेट करना है, और कैसे उसमें जो हिडन साइंस है उसको कैसे उजागर करना है, ये आवश्यक है। हर एक कोई भी कहानी आप लेंगे उसमें आपको साइंस, हमारी कोई भी कहानी जो हम दादियों से, नानी और दादी से जो कहानियां सुनते थे, अब कहाँ सुनते हैं, अब तो दादी नानी साथ में ही रहती ही नहीं, तो उनसे जो कहानी सुनते थे उसमें हर एक में साइंस है। कोई भी कहानी आप ले लीजिए। एक मैं और कहानी सुनाता हूँ आपको। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था और सभी बानर, अन्य लोग सब बड़े बड़े पहाड़ पत्थर उठा करके समुद्र में डाल रहे थे सेतु बनाने के लिए, तो गिलहरी, समुद्र के किनारे गिलहरी पड़ी हुई थी। वो ये सोच रही थी कि इतिहास मेरे बारे में क्या लिखेगा कि मैं, राम सेतु बन रहा था, सभी लोग उसमें अपना अपना योगदान दे रहे थे, श्रमदान कर रहे थे, और गिलहरी चुपचाप बैठी देख रही थी। तो उस गिलहरी के मन में ये हीन भावना डेवलप हुई, तो अपने इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए कि उसके बारे में अच्छा लिखा जाए इतिहास में, तो उसने वो, अब उसके हाथ पैर तो थे नहीं कि वो पत्थर उठाएगी, तो वो बालू में ही, समुद्र किनारे जो बालू था उसी में लौटती थी, और जब लौटती पोड़ती थी तो उसमें से बालू के कण उसमें बालों में अटक जाते थे, और फिर वो सेतु के साइड में जाकर के वहां पर हिलती थी, पूरे शरीर को हिलाती थी, तो बालू के कण सेतु की जगह वहां गिर जाते थे। तो अपना योगदान बेचारी जितना कर सकती थी कर रही थी। तो ये योगदान तो हो गया देखिए, लेकिन इसका मैं आपको नया इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। योगदान तो सुनिश्चित हो गया इस कहानी से, लेकिन इसका री इंटरप्रिटेशन, ये इसका इंटरप्रिटेशन, सही इंटरप्रिटेशन ये है कि बालू ये देख रही, कि गिलहरी ये देख रही थी कि बड़े बड़े पत्थर जब रख रहे थे वो सब लोग, तो बीच बीच में छेद थे और उससे पानी निकलता था, समुद्र का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ। तो उससे ये गिलहरी को ये महसूस हुआ कि ये पत्थर बह जाएंगे, इसलिए वो समुद्र किनारे जो बालू के साथ सैंड पार्टिकल्स के साथ साथ उसमें, यदि आप लोग समुद्र के किनारे गए हों तो देखे होंगे कि जो मोलस्क्स हैं, आपने फाइलम मोलस्क का पढ़ा होगा, जिसमें लैमनिब्रैंकिया है, गैस्ट्रोपोडा है, स्कैफोपोडा है, जिनकी जो कवर है, वो आउटर कवर जो है वो उससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट
चूना पत्थर है बेसिकली। जो हम सीमेंट बनाते हैं वो चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। और सीमेंट किसका काम करता है? चूना पत्थर से सीमेंट बना, सीमेंट सीमेंटिंग का काम करता है। हम घर बनाते हैं तो पत्थर रखते हैं, पत्थर के बीच में सीमेंट रखते हैं, ईंटे के बीच में सीमेंट रखते हैं, जिससे पकड़ मजबूत हो जाए। तो ऐसा करने के लिए तो वो जो सेल्स हैं, मोलस्क सेल्स, उनके छोटे छोटे पार्टिकल सैंड में मिक्स रहते हैं, क्योंकि वो सेल्स वो समुद्र की वेव के साथ आते जाते रहते हैं तो टूटते हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे मेन टुकड़े। तो जो सैंड होता है समुद्र के किनारे का, रिवर के किनारे ऐसा नहीं होता, बड़ी बड़ी रिवर्स में भी ये भी होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र की रिवर्स में आप देखोगे तो सैंड के साथ इस तरह के मोलस्कान सेल्स के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो ये वो ले जा करके डाल रही थी, सीमेंटिंग का कार्य कर रही थी। तो विज्ञान था वहां पर, उसके समझ में आ रहा था कि पानी निकल रहा है, बह जाएगा, यदि हम वहां पर सैंड और ये जाके डालेंगे तो पत्थर जुड़ जाएंगे आपस में। तो ये था। तो इस तरह से जो अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें हमें अपने आप को री इंटरप्रेट करके उसमें क्या साइंस है, किस साइंस की भावना से वो कहानियां लिखी गई हैं, तो ऐसे कोर्स कंटेंट हमें बनाना जिससे कि हमारा मानव मन और सुदृढ़ हो और मजबूत हो। सनातनी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, कालजयी सनातन संस्कृति की अवधारणाएं हमारी युवाओं में और ज्यादा घर करें। ऐसे कोर्स कंटेंट हमें पर्टिकुलरली ये संभव है ह्यूमन जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज है, लैंग्वेजेज है, इनमें बहुत ही ज्यादा ऐसे संभव है। और कहानियां और ये जहां पर हम विज्ञान जिससे निकाल सके वो साइंस के डिसिप्लिन में ऐसे कोर्स कंटेंट चुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आजकल देखिए एक नया कंसेप्ट एनईपी में है कि जब ये आप लोगों ने सुना होगा, एक और अच्छी बात बताता हूँ, ये मूक जो है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, 4 क्वाड्रेंट इसमें होते हैं। जो मूक आप लोगों ने किसी ने आपने बनाया है, और या कि आप किसी कोई आपके स्टूडेंट कोई ले रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ से भी, मैं सागर में था तो वहाँ पर उस समय 17 मूक कोर्सेज ऑफर कर रही थी सागर विश्वविद्यालय। यहाँ पर अभी 3 कर रही है और 7-8 बनते जा रहे हैं। तो ऐसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एक संस्था से, जैसे हम उदाहरण के तौर पर आपसे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी, जेएनयू मान लीजिए अच्छी यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ की अपेक्षा, तो हमारा विद्यार्थी कोई कोर्स प्रोग्राम नहीं, कोई कोर्स यदि जेएनयू से करना चाहे या आईआईटी बॉम्बे से करना चाहे या आईसर किसी आईसर से करना चाहे, तो ये सुविधा ये मूक प्रदान करती है। यदि आईसर मान लीजिए आईसर भोपाल है, आईसर भोपाल में कोई कोर्स हमारा टीचर कोई कोर्स दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं मूक, हमारा विद्यार्थी उसको पढ़ना चाहता है तो वो ले सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक विद्यार्थी हमारा विद्यार्थी है, लेकिन वो एक ही नहीं कि एक ही जगह से ले सकता है, वो आईआईटी बॉम्बे का भी ले सकता है, वो जेएनयू से भी ले सकता है, वो बीएचयू से भी ले सकता है। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट, अभी क्या है कि यदि एक स्टूडेंट हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया तो वो हमारे यहाँ का बधुआ विद्यार्थी हो जाता है। बधुआ इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं दूसरी जगह से वो पढ़ ही नहीं सकता है, व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन अभी 5-6 साल पहले ये व्यवस्था हुई है कि एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होते हुए भी हमारे विद्यार्थी कई विश्वविद्यालयों से, कई संस्थानों से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का फ्रीडम हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे रही है। और ये देखिए, और इसमें क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है ना। मान लीजिए 4 क्रेडिट का कोर्स कोई हमारा विद्यार्थी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बीएचयू से किया, तो वो क्रेडिट वहां की यूनिवर्सिटी हमें भेजेगी, ट्रांसफर करेगी, और हम उसके ट्रांसक्रिप्ट में, उसकी मार्कशीट में उस क्रेडिट को एंटर करेंगे। तो उसको वो मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसका लर्निंग बेकार जा रही है, क्रेडिट भी मिल रहा है, वो स्किल भी सीख रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुनिश्चित करती है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि लेकिन ये हम आपको एक चीज और बता दें कि ये कोई हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए ये क्रेडिट ट्रांसफर कोई नया कंसेप्ट नहीं है। गुरुकुलों में आप देखें कि गुरुकुलों में क्या होता था कि कुछ वेदों में, कुछ गुरुकुल में एक वेद में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, या कि कोई एक गुरु जो है
एक वेद में निपुण हुआ करता था, दूसरे वेद में वो उसको उतना महारत हासिल नहीं होता था। और यदि कोई विद्यार्थी दूसरा वेद भी पढ़ना चाहता था तो वो गुरु बोलता था कि इस गुरु के पास जाओ, वो तुमको अधिक अच्छे ढंग से इस वेद को सिखा पाएंगे। विद्यार्थी जाता था दूसरी जगह सीखने के लिए, और वो गुरु चिट्ठी लिखते थे कि हमारा शिष्य है, ये इस वेद में अच्छी तरीके से इस विषय में ये ज्ञाता बन गया है, ये विषय भी सीखना चाहता है, इसलिए मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ, आप इसको अपने शरण में लेकर के सिखाइए। तो विद्यार्थी जाता था और सीख के आता था, वो वहाँ के गुरु लिख देते थे कि हाँ ये सीख गया है, तो वो आकर के ये इस तरह की, तो स्किल क्रेडिट ट्रांसफर उस समय भी होता था। इस तरह की व्यवस्था पहले भी थी, कोई नई व्यवस्था नहीं है, अब इसको नया रूप नया नाम दे दिया गया, बस अंतर इतना ही है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं मूक की बात कर रहा था। मूक में मैंने अभी जो आपको बताया कि 4 तरह के 4 क्वाड्रेंट में हम श्रुति की बात किया कि 4 चरणों में क्वार्टर में पढ़ाई होती थी। मूक देखो आप, मूक में भी 4 क्वाड्रेंट है, कितनी ज्यादा समानता। आपको लगेगा ये 4 चरण जो श्रुति में पढ़ने के जिनको बताया गया है क्वाड्रेंट, और जो मूक के जो 4 क्वाड्रेंट हैं इनको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मूक बनाने वाले जो मूक का कंसेप्ट विदेशी कंसेप्ट है, तो मूक बनाने वालों ने श्रुति से कहीं पढ़ करके ये 4 क्वाड्रेंट में मूक बनाने की व्यवस्था बनाई है। आप देखोगे, आप स्वयं को आपको यही एहसास होगा। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको विदेशियों ने कितना ज्यादा उसका उपयोग किया है। मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। हमारे गुरुकुलों में 6 तरह के शिक्षकों की व्यवस्था थी, 6 तरह के शिक्षक हुआ करते थे, और उसमें यह व्यवस्था केवल नॉलेज दे, कुछ तरह के टीचर केवल नॉलेज बताते थे, ज्ञान देते थे, इंफॉर्मेशन देते थे। कुछ टीचर्स उस इंफॉर्मेशन की व्याख्या सिखाते थे, कुछ टीचर्स इंफॉर्मेशन भी देते थे, व्याख्या भी सिखाते थे, उसकी एनालिसिस और सिंथेसिस कराते थे। कुछ शिक्षक इससे भी आगे जाकर के उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है ये सिखाते थे, और कुछ शिक्षक ये बताते थे कि इन 5 चीजों के साथ साथ कैसे ज्ञान का सृजन किया जाए, नया ज्ञान कैसे बनाया जाए, ये सिखाते थे। तो 6 तरह के शिक्षक हमारे गुरुकुलों में हुआ करते थे। अब आप सब लोग ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़े होंगे, 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग, जहां पर आप ये 6 तरह के टीचर्स उनके रोल को बाएं साइड में लिखें, और जो 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग ब्लूम्स की है दाहिने साइड में लिखें। आपको जैसे एक मैच द फॉलोइंग आता है क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप, उसमें देखेंगे कि मैच द फॉलोइंग में सीधे लाइन आप मैच कर सकते हो, इतनी ज्यादा समानता। तो ये है अपने भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता, जो कालजयी है। 4 चरण जो बताए हैं श्रुति में, आज भी हम उन्हीं की शरण में जा रहे हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की। तो ये है इसमें। और जो देखिए, एक जो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की जो व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुनिश्चित करती है, ये भी बहुत आवश्यक है 2 वजहों से। इसकी एक वजह ये है कि सभी विद्यार्थियों की जो हमारा देश, खासकर हमारे देश में जहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वेरी करती हैं अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज, ऐसे में हम कैसे विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करना और कैसे सुविधाजनक बनाए, जैसे जिसको हम बोलते हैं ईज ऑफ परस्यूइंग एजुकेशन, ईज ऑफ परस्यूइंग एजुकेशन कैसे कर पाए। उसके लिए आवश्यक है कि यदि कोई विद्यार्थी मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बाद कोई उसको समस्या होगी किसी भी तरह की, तो वो पढ़ाई अपना नहीं पूरा कर पाता, निकलता। आज की आप देखिए कि 6 सेमेस्टर का जो प्रोग्राम है, 5वें सेमेस्टर तक यदि कोई विद्यार्थी पढ़ा, सब कुछ हो गया, अच्छे स्कोर उसके आ गया, अच्छा ग्रेड आ गया, और लास्ट सेमेस्टर वो नहीं कर पाता है, और आगे वाले
2 साल तक यदि नहीं कर पाता है तो उसका 2.5 साल का पढ़ना, परिश्रम, मनी, एनर्जी, टाइम सब उसका बेकार चला गया। तो इन 2 वजहों से जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का प्रावधान हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाया गया है, ये बहुत ही अच्छा है और इसको लाना हमारी शिक्षा व्यवस्था में अति आवश्यक है। यहाँ मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये फिजिकल एग्जिट और एंट्री नहीं है कि 1 साल के बाद। और यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज हम शिक्षकों का है वो ये है कि अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट जब अप्लाई होगा, कई संस्थाओं में हो गया है, तो हमें 2 तरह के क्लासरूम में हमें 2 तरह के लर्नर्स रहेंगे, सीखने वाले। एक जो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, एक ग्रुप जो पढ़ाई कंटिन्यू करेगा, दूसरा ग्रुप जो पढ़ाई छोड़ेगा, एग्जिट करेगा। 2 तरह की, और दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है। यदि हम दोनों को एक ही चीज पढ़ाएंगे तो जो एग्जिट करेगा वो जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ ये नहीं है कि वो एग्जिट करने के बाद जाके घर में बैठ जाए और 2-3 साल बाद जब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे तो पुनः वापस हो जाए। ये तो वही है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम उसको इतनी स्किल दे दें कि वो फर्स्ट ईयर के बाद ही कुछ स्किल उसको हम दे दें जिससे कि वो कुछ न कुछ काम करने लगे बाहर जाकर। तो इसके लिए हमें एडिशनल स्किल बेस्ड कोर्सेज हर एक साल में, जो ग्रेजुएशन 4 साल का होने जा रहा है, जो 3 साल के बाद छोड़ना चाहेगा वो भी छोड़ सकता है, लेकिन तो इसमें फर्स्ट ईयर के बाद कुछ स्किल्स हम डेवलप करें जो छोड़ने वाले हैं उनमें, सेकेंड ईयर के बाद भी स्किल्स डेवलप करें, थर्ड ईयर के बाद भी स्किल डेवलप करें। तो ये इस तरीके से हम हमारे जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें आया है और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप सबको मालूम होगा कि गुरुकुलों में 16 विषय सिखाए जाते थे और 64 कलाएं। तो वहां पर शिक्षा का महत्व जीवन जीने की का कौशल प्राप्त करना था। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो जीवन जीने की कौशल सीखने की के लिए शिक्षा थी, और आज जो शिक्षा है वो रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षा। रोजगार प्राप्त करना अति आवश्यक है, लेकिन केवल हमारा ध्येय, मानव का ध्येय केवल पेट भरना नहीं है। मानव का ध्येय अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी गौरवशाली संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाना है हमें, और उनको उसी प्योरिटी के साथ, जिस प्योरिटी के साथ हमने ग्रहण किया अपने पूर्वजों से, उसी प्योरिटी के साथ हम इनको यंगर जनरेशन को इसको हैंड ओवर करना है। ये है काम हम सबका। तो ये आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये है कि इतने तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस रूप से लेना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रोविजंस वेस्टर्न लर्निंग सिस्टम में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको मैं किया मूक के द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो हो रही है, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। साउथ कोरिया में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट 1998 से चल रहा, 1998 से बहुत सफलतापूर्वक वहां चल रहा। 1998 मतलब अभी हो गया 24 वर्ष। अमेरिका में 2002 से चल रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और हमारे यहाँ हम 2022 में अभी परेशान हो रहे हैं कि ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ विरोध हो रहा है कुछ शिक्षकों के द्वारा, और बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी जो सुधार है एनईपी में, उनका विरोध हो रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जो हम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मुझे बात अच्छी नहीं लगती है वो ये है कि ये कहते हैं कि हम 2040 तक इन सुधारों को इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि 2040 तक इतने सारे नए नए परिवर्तन आ जाएंगे कि आज जो हम परिवर्तन अभी करने जा रहे हैं एनईपी के द्वारा वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। There will be new reform, set of reform that will emerge by 2040 in Western learning systems, and our learning system will always be lagging behind. ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है। और आज जो है देखिए, इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि
चेंजेज इतनी तेजी से हो रहे हैं, परिवर्तन सुधार इतने तेजी से हो रहे हैं कि हमारा जो करंट एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, इसकी जो पॉलिसीज हैं, इसकी जो मैकेनिज्म है और इसकी जो अप्रोच है, वो एडिक्वेट नहीं है इन चेंजेस को एम्ब्रेस करने के लिए। और इसकी वजह से हमारा भारतीय लर्निंग सिस्टम जो है, ये हमेशा इस खतरे में है कि हमारा लर्निंग सिस्टम कहीं अप्रासंगिक ना हो जाए, और ज्यादा अप्रासंगिक ना हो जाए, आउटडेटेड ना हो जाए। तो इसको हमेशा अपडेटिंग इसकी करनी है। और इसके लिए क्या है, जो बज़वर्ड जो है वो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। केवल रिफॉर्म, जो हम रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें उनके मुताबिक हम परफॉर्म करें, परफॉर्मेंस हमारा उसके मुताबिक हो, तभी हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो परफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अंततः मैं एक विषय को और टच करना चाहूंगा, वो है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रबंध करना ये अति आवश्यक है। आप जो भी बहुत सारे रिसर्च, गूगल में तरह तरह की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से जो मानसिक विकास होता है, जो चीजें समझ में आती हैं, वो अति आवश्यक है। और हमारा पूरा लर्निंग सिस्टम मैकाले लर्निंग सिस्टम है, ये हमारी प्राविधि नहीं है। इंग्लिश एज एडिशनल लैंग्वेज सीखना है, अति आवश्यक है, लेकिन जो मूलभूत शिक्षा है हमारी, वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। और उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें अपनी अपनी मातृभाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि 200 वर्ष की गुलामी यदि आप शुरू करें 1834 में, जब से हमारे गुरुकुल लापता हो गए और मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, 200 साल करीब मान लें, तो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की बहुत ज़्यादा दुर्गति हुई है। और पर्टिकुलरली जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनमें हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं में तो छोड़ दीजिए, हिंदी भाषा में भी जो लर्निंग मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं है। तो हमें ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें हम जो भी जितना भी योगदान कर पाए, उतना योगदान करना हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और उसके साथ हम सबको कार्य करना पड़ेगा। तो मातृभाषा को प्रोत्साहन देना, शिक्षा में उसका उपयोग करना, ये हमें आप सब लोग समाचार पत्र में पढ़े होंगे कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू हुई है। तो इस तरह से प्रयास करने से हम जरूर करेंगे। हमें अपने लर्निंग सिस्टम को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना है। और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इवेल्युएशन के बारे में मैं नहीं बोला। मैं आपको बता दूं कि इवेल्युएशन, गुरुकुल सिस्टम में इवेल्युएशन कैसे होता था। जब कुछ पुस्तकें उपलब्ध हो गई, ग्रंथ बन गए, पुराण लिख लिए गए, इन सब के बाद जो इवेल्युएशन होता था वो इस तरीके का होता था। मैंने कहीं पढ़ा कि ग्रंथ लेकर के गुरु बैठ जाता था और एक लकड़ी का सीख, और उस लकड़ी के सीख को किसी भी पेज में डालता था, उससे पलटाता था पेज। जो भी पृष्ठ संख्या निकली, कोई विद्यार्थी आया, उस विद्यार्थी से पूछता था कि इस पृष्ठ संख्या में क्या लिखा है, आप ये बताओ, विद्यार्थी से। दूसरा प्रश्न जब वो बता देता था विद्यार्थी, तो दूसरा पूछता था कि इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। फिर वो गुरु बोलते थे कि ये तो जो लेखक है उसकी तरह, जो ये गुरु ने ये आपको जो इंटरप्रिटेशन बताया है वो आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए ये बताइए। ये तीसरा प्रश्न होता था। और चौथा प्रश्न ये पूछता था कि इसमें जो ज्ञान प्राप्ति हो रही है, इस पृष्ठ संख्या से, इस लेसन से जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उस ज्ञान की हमारे समाज के लिए क्या उपयोगिता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों का इवेल्युएशन होता था। और आप दो तरह के इवेल्युएशन की बात करें, दोनों तरह के इवेल्युएशन वहां हो, और इवेल्युएशन डेली बेसिस पर होता, कोई अलग से इवेल्युएशन शेड्यूल नहीं हुआ करता।
हर एक लेसन पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद उसका इवेल्युएशन, जब तक इवेल्युएशन नहीं हो जाता था नया लेसन गुरु शुरू ही नहीं करते थे। तो इस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। इन्हीं सब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा हमारी पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति की इन्हीं सभी खूबियों को पुनर्स्थापित करने के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था में पुनः उनको स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। इसीलिए हम इसको भारत केंद्रित बोलते हैं और इसीलिए हम इसको लर्नर सेंट्रिक बोलते हैं। तो इसलिए हम सबको भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी सुधारों को अच्छी तरह से समझना है और उन सबको अपने अपने संस्थानों में हमारा जो भी दायित्व है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, हम जितना कर सकते हैं उतना करते हुए इन सुधारों को लागू करें, जिससे हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके, जिससे हमारी संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति सुरक्षित हो सके और जिसके फलस्वरूप हम पुनः विश्व गुरु के रूप में अपने आप को पुनः स्थापित कर पाए। इसी कामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं और मैं तो शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी कुछ बातें, चंद बातें आपके सामने रख सकूं। और आप सब पंजाब आमंत्रित है, हमारे विश्वविद्यालय आमंत्रित है। कभी भी आपको कोई भी कार्य हो यहाँ पंजाब में, पंजाब विश्वविद्यालय में, आप हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं, अपना विषय मेरे सामने रख सकते हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी विभागाध्यक्ष, हमारे कलीग और विद्यार्थियों, हम लोगों ने इन्हें चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में सुना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बोलते हुए, और तभी से कहीं न कहीं मन में ये इच्छा थी कि एक बार पुनः तिवारी जी को सुना जाए। और आज हम सुबह से अपने ज्ञान का खाली पैमाना लिए हुए बैठे हुए थे इस इंतजार में कि कब तिवारी जी अपने उद्गार से इस पैमाने को लबरेज कर दें। और इस वक्त हम इस कदर सैराब हो चुके हैं जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। मैं तिवारी जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी उन्हें आमंत्रित करते रहेंगे। आपका आमंत्रण सर हमें कबूल है, आप जब चाहें हमें बुला लें, हम गए वक्त नहीं है कि आ भी न सकें, हम हमेशा आपकी खिदमत में रहेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी बात आज के इस आयोजन के बारे में, जिसके सिलसिले में हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आज का ये आयोजन मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पे था। मरकजी हुकूमत ने ये तय किया था कि मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश को हम नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाएंगे। और ये मेरी खुशकिस्मती है और शायद बदकिस्मती भी कि 2008 से मैं मुसलसल हर नेशनल एजुकेशन डे पे मुझे कुछ न कुछ मौलाना आज़ाद के बारे में बोलना पड़ता है। हालांकि मौलाना आज़ाद के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है, लेकिन जो हमारे ऑडियंस हैं मुझे कई बार सुन चुके हैं। लेकिन चूंकि आज हम नेशनल एजुकेशन डे मना रहे हैं और मौलाना के कृतित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें थोड़ा सा हमारी नई पीढ़ी को खास तौर से जानने की ज़रूरत है। मौलाना की शख्सियत इतनी बेहतरीन थी कि खास तौर से बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कहते हैं कि जब कुदरत और किस्मत दोनों मेहरबान हो जाएं और अपने दरवाजे किसी शख्स के लिए खोल दें, तब मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत पैदा होती है। और मौलाना आज़ाद की शख्सियत से प्रेरणा लेने के लिए ज़रूरत इसलिए होती है कि शायद आप लोगों में से कम लोगों को पता हो, हम मौलाना आज़ाद को हिंदुस्तान के
वजीर तालीम की हैसियत से, एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से तो जानते ही, लेकिन उनकी शख्सियत किस तरह से थी। आप ये देख लीजिए, मौलाना आज़ाद एक मैं नई चीज बताऊं, शायद आप लोग, मौलाना आज़ाद 11 नवंबर को पैदा ही नहीं हुए थे, जिनकी याद में हम आज उनकी जन्मतिथि पैदा हम मना रहे हैं। एक्चुअली मौलाना आज़ाद 12 नवंबर 88 को पैदा हुए थे, लेकिन हुकूमतें जैसा चाहती हैं हमसे करवा देती हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि मौलाना आज़ाद 11 नवंबर को पैदा हुए, तो 11 नवंबर को ही पैदा हुए। और जब हम मौलाना आज़ाद की सलाहियतों को देखते हैं तो आप ये जान लीजिए कि जिस उम्र में बच्चे कागज पे स्याही छिड़कना सीखते हैं, उस उम्र में मौलाना आज़ाद ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। 12 साल की उम्र में मौलाना ने पहला जो जर्नल निकाला था नैरंगे आलम के नाम से, उसके 8 वॉल्यूम पब्लिश हुए। मैं तो यहाँ संस्थान में एक जर्नल निकालने की पिछले 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ, अभी उसका कवर पेज तैयार नहीं हो पाया। लेकिन आप ये सोचिए कि 12 साल का बच्चा एक मैगजीन निकालता है और उसके 8 वॉल्यूम छपते हैं। उसके बाद नैरंगे आलम के बाद उन्होंने अल मिसबाह के नाम से एक मैगजीन निकालना शुरू किया, वो भी कई साल चलती रही। 13 साल की उम्र में लिसानुल सिद्क के नाम से मैगजीन निकाली। तो ये तो बुनियादी उनकी वो चीज़ें थी। और 13 साल की उम्र में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं अक्सर बताता हूँ कि अप्रैल 2004 में, अब आप जोड़ लीजिए नवंबर 88 से लेके अप्रैल 2004, कुल जमा पूंजी उम्र 15.5 साल की होती है। 15.5 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद को अंजुमन पंजाब के जलसे में, अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में लाहौर बुलाया जाता है। उनकी शोहरत 16 साल के बच्चे की, 15 साल के बच्चे की शोहरत इतनी थी कि उसे लाहौर बुलाया जाता है। और जब ये बच्चा कह लीजिए या मौलाना आज़ाद स्टेज पे पहुंचते हैं, ऑडियंस इसके लिए मुंतजिर होते हैं कि मौलाना आज़ाद अभी आए नहीं, और बार बार अनाउंस हो रहा है कि मौलाना आज़ाद आने वाले हैं, और मौलाना आज़ाद कह रहे हैं कि मैं ही मौलाना आज़ाद। ऑडियंस को, जलसे में किसी को यकीन ही नहीं आया कि ये 15 साल का बच्चा मौलाना आज़ाद है, क्योंकि उस वक्त तक उनकी राइटिंग्स, क्रिएटिव राइटिंग्स इतनी मकबूल हो चुकी थी कि लोग अंदाजा लगाते थे कि मौलाना कोई बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन वो तो 15 साल का बच्चा निकला। बाद में जब उन्होंने बार बार अनाउंस हुआ कि मौलाना आज़ाद आने वाले हैं, तब वो बच्चा जाके स्टेज पे कहता है, भाई बार बार मत अनाउंस कीजिए, मैं आ गया हूँ। और आप यकीन मानिए, तो किसी ने कहा कि मौलाना आज़ाद नहीं आए, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया है। तो ये शोहरत और मकबूलियत का आलम ये था। और उनके जो कंटेम्परेरीज थे, शिबली नोमानी थे, सर इकबाल थे, बहुत सारे बड़ी बड़ी शख्सियतें थी। वहाँ स्टेज पे मौलवी वहीदुद्दीन सलीम बैठे हुए थे। उन्होंने उस बच्चे का कॉलर पकड़ा और ले गए मौलाना शिबली नोमानी के यहाँ कि सर, ये बच्चा कह रहा है कि मैं मौलाना आज़ाद हूँ, ये दावा कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये वही है। तो ये इस तरह का जो हुनर होता है, 12 साल की उम्र में उन्होंने मदरसों में पढ़ाना शुरू कर दिया था। बस उस वक्त गाइडिंग और काउंसलिंग का डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता, मौलाना को सही गाइडेंस नहीं मिल पाई। वो ये तय नहीं कर पाए कि मुझे कौन सी फील्ड चुननी है, क्योंकि मौलाना की जो शख्सियत थी उसमें 3 एलिमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो सियासत थी, दूसरी सहाफत थी, जर्नलिज्म, और तीसरा मजहब था। 20 साल की उम्र में 1909 में मौलाना के वालिद
मौलाना खैरुद्दीन की डेथ हो जाती है, उस वक्त 20 साल की उम्र मौलाना आज़ाद की होती है। हम लोग रहते तो बड़े खुश किस्मत होते कि अच्छा हुआ, वालिद का सर से साया उठ गया, अब हम खुद मुख्तार हो गए। और मौलाना आज़ाद के पास कई ऑप्शंस थे। उनके जो फादर थे मौलाना खैरुद्दीन, वो पीरी मुरीदी का काम करते थे, उनकी अपनी दरगाह थी। उनके मरने के बाद उनके मुरीदों ने चाहा कि उस कुर्सी पे मौलाना आज़ाद को बैठा दिया जाए। अगर मौलाना आज़ाद में थोड़ा सेंस होता तो उस कुर्सी पे बैठ गए होते और जिंदगी भर बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए हुए इतने ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी खानकाहों में और दरगाहों में जो भी जाता है दे के ही आता है, कुछ ले के नहीं आता। तो मौलाना आज़ाद बड़े आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन शायद कोई उनको गाइड करने वाला नहीं रहा, इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म का रास्ता अख्तियार किया। मिजाज उनके मिजाज में बड़ी सिमावी कैफियत थी, एक जगह ठहर नहीं पाते थे। तो फिर वो 1911 में उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि उसके बाद रिटायरमेंट ले लेते तो भी मौलाना आज़ाद आज़ाद ही होते। उन्होंने 1911 में जो अखबार निकालना शुरू किया कलकत्ते से, अल हिलाल की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। 1 साल 2 साल निकला, अगर उस अखबार के निकालने के बाद मौलाना आज़ाद कुछ नहीं करते तो भी उनके क्रेडिट में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन उन्होंने फिर अपना सफर जारी रखा। अखबार निकालते थे इसलिए कि इस्लामिक कल्चर को प्रमोट कर सके और मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को सही रास्ता दिखा सके और सियासत में उनका मकाम का तयन कर सके, इसलिए अल हिलाल निकाला था। फिर वो बराह रास्त गांधी जी के संपर्क में आए और सियासत में घुस गए। तो और सियासत में 34 साल की उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मौलाना आज़ाद को आज़ाद हिंदुस्तान से पहले और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वो मकाम नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। और शायद इसकी वजह ये थी कि उन्होंने सही रास्ता अख्तियार नहीं किया। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की सियासत में उनको शो बॉय कहा जाता था कि ये हिंदुस्तानी सियासत का ऐसा चेहरा है जिसे हम शो बॉय कह सकते हैं। उस वक्त सियासत में उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और आज़ादी के बाद आज देखिए, जब एनआरसी की बात होती है, सीएए की बात होती है, या कहीं किसी कम्युनिटी पे कोई उसके आगे कुछ बात कही जाती है, तो चाहे जो भी हो, चाहे वो रामपुर के मौलाना हैं, क्या नाम उनका, जो अभी जेल से छूटे हैं, आजम खान साहब को भी सबसे ज्यादा शिकायत मौलाना आज़ाद से ही होती है। वो कहते हैं कि हमारा खानदान तो पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद से 1947 में ऐसी तकरीर की कि हमारे वालिद और हमारे खानदान के आबा व अजदाद मौलाना आज़ाद की तकरीर सुनकर वापस रामपुर चले आए, अदरवाइज तो हम पाकिस्तान में होते और खुशहाल होते। तो कुछ लोगों को अभी भी शिकायत है। तो कहने की गरज ये है कि मौलाना आज़ाद, मैंने ये कहा कि सिर्फ 11 साल 12 साल की उम्र में जितनी मैगजीन्स उन्होंने निकाली और हिंदुस्तान की सारी मशहूर मैगजीन, मखज़न, लखनऊ से आज़ाद निकालते थे, खदंगे नज़र, नौबत राय नज़र, इन सब लोगों ने अपनी मैगजीन की एडिटरी के लिए उस 13 साल के बच्चे को जिम्मेदारी सौंपी। तो वो एक आइडियल थे बच्चों के लिए, हमारे तालिब इल्मों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि किस तरह से मेहनत की जाए और वैसे ही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। लेकिन उन्होंने सियासत का रास्ता चुन लिया। 11 में अल हिलाल जब बंद हुआ,
उसके बाद मौलाना रिटायर हो गए होते तो भी कोई उनकी शोहरत में फर्क नहीं पड़ता। 2020 में उन्होंने 1920 में उन्होंने तर्जुमानुल कुरान लिखा। अगर तर्जुमानुल कुरान के बाद भी मौलाना कुछ नहीं लिखते तो भी हिंदुस्तान के लिटरेचर में मौलाना की अहमियत उतनी ही होती जितना कि ये सारे काम करने के बाद। तर्जुमानुल कुरान के बाद एक एक अगर उनकी किताब को छोड़ दिया जाए, और 1942 में अहमदनगर जेल में थे, उस वक्त उन्होंने अलीगढ़ के एक शख्स को चिट्ठियां लिखी थी, मौलाना हबीबुर रहमान, नवाब हबीबुर रहमान शेरवानी को। अगर उन चिट्ठियों का जो एडिट किया सिर्फ वही चिट्ठियां लिख देते मौलाना, तो भी वो अबुल कलाम ही होते। और अबुल कलाम नाम तो उनका महीउद्दीन था। अबुल कलाम इसलिए कहा गया कि मौलाना आज़ाद वाकई अबुल कलाम थे। अबुल कलाम का मतलब मास्टर ऑफ स्पीच, जो बोलने का सरदार। कुछ लोग अब्दुल कलाम भी कह देते हैं। अब्दुल कलाम कहिएगा तो मीनिंग हो जाएगा सर्वेंट ऑफ स्पीच, अबुल कलाम कहिएगा तो मास्टर ऑफ स्पीच। तो बहुत सारी, और मौलाना आज़ाद ने खुद कहा था कि जिस उम्र में लोग किसी काम को करने के लिए कमर कसते हैं, उस उम्र में मैंने अपनी कमर ढीली कर ली थी। तो ऐसी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान की सियासत को, हिंदुस्तान की ज़बान को, हिंदुस्तान के लिटरेचर को, देखिए हिंदुस्तान की सियासत ने दो लोगों का बड़ा नुकसान किया है। एक मौलाना आज़ाद का और दूसरा जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू की राइटिंग्स को पढ़िए, तबीयत खुश हो जाती, बशर्ते कि समझ में आ जाए। वैसे ही, और उन्होंने लिखा कितना, बहुत थोड़ा लिखा। जवाहरलाल के डिस्कवरी ऑफ इंडिया और लेटर्स टू द डॉटर जी। हाँ वही, अब मैं तो थोड़ा कम पढ़ा हूँ, इसलिए आप लोग जवान हैं, आप लोग पढ़िएगा भी। तो बहरहाल कहने का मतलब कि अगर ये लोग सियासत में नहीं होते तो हिंदुस्तान की लिटरेचर को मालामाल कर देते। तो ऐसी शख्सियत जिसकी याद में हम लोग आज ये जश्न मना रहे हैं, और इस जश्न को यादगार बनाने के लिए हमारे जो आज के चीफ स्पीकर थे प्रोफेसर आर.पी. तिवारी साहब, मैं उनका संस्थान की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीर की और स्तुतियों, धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा की अवधारणा को इतने खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में पेश किया। हम उसके लिए आभारी हैं, और हम इस बात के लिए भी आभारी हैं कि उनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे कितनी अच्छी पकड़ है, और स्कूली शिक्षा के बारे में, विद्यालय शिक्षा के बारे में उनका कितना गहन अध्ययन है और जो विचार है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा के परचम को बुलंद करना होगा। शिक्षा का माध्यम न सिर्फ मातृभाषाओं को बनाना होगा, बल्कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें मेडिकल और अभियांत्रिकी की शिक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी। तो मैं एक बार पुनः प्रोफेसर आर.पी. तिवारी साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें, हमारे विद्यार्थियों को संबोधित किया और इतने सरल और सरस अंदाज में अपने विचारों को रखा। सर, हम बहुत बहुत आभारी हैं। और इसके साथ ही साथ मैं संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर एस.डी. शर्मा साहब का भी आभारी हूं कि आज के दिन ऐसे मौके पे उन्होंने एक बहुत ही सुयोग्य और सक्षम व्यक्ति को
इस कार्यक्रम में उद्बोधन करने के लिए आमंत्रित किया। मैं शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी विभागाध्यक्ष भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और अंत में अपने विद्यार्थियों, फैकल्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सभागार को भरने में अपनी सहभागिता प्रदान की। और डॉक्टर आनंद आर्या जी का आभार तो मेरे लिए व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी मोहब्बतें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं उनकी मोहब्बतों से ही अभिभूत हो जाता हूँ। लेकिन वो भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारी जो स्टूडियो स्टाफ है, जिन्होंने तिवारी जी को हमसे रूबरू करवाया और हमें पूरे हिंदुस्तान से रूबरू करवाया। हम अपने जो स्टूडियो के टेक्निकल स्टाफ हैं उनके भी आभारी हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के सारे सदस्य। और अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो उसका भी आभार है, और ना ले पाया हूं तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप माफ़ भी कर देंगे। थैंक यू।